सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. Hi students, my name is Ratnaprabha Patil. I am from Sudhagad Education Society Junior College, and today I am starting with your lesson, that is thermodynamics, from your new syllabus of 12th physics, that is 4th lesson from your book. Okay, then before going to the topic, today we are experiencing thermodynamics in various ways. That is, if you are boiling water or making food, or in winters you are rubbing your hands, this is what you are making, or you are by rubbing your hand, what you are doing, you are with the friction you are going to produce heat on your palm. Okay, then what is meant by thermodynamics, we will take it in the next part, but before that we are going to discuss what you have studied or discussed in your 11th physics, that is the chapter thermal properties of matter. In that, what you have studied, that how or what is meant by temperature and heat. This difference you have studied there, but again I am taking as a revision. Okay, then what is meant by heat first, or what is the difference between temperature and heat, that is we are going to discuss right now. Okay, then you are knowing this. As example I have given here, that is ice cold water left on the table. Then you are knowing that ice cold water is having less temperature than the surrounding. कौन सा surrounding है ये? The surrounding in which that glass is kept. और the table जहाँ पे रखा है आपने, वो टेबल किस रूम में रखा है, उस रूम का जो भी टेम्परेचर होगा वो आइस कोल्ड वाटर से ज़्यादा होगा. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट, हॉट कप ऑफ टी kept on the same table. ठीक है, hot cup of tea is having more temperature than the surrounding. टेम्परेचर ज़्यादा है, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने टी बनाने के लिए उसको गैस स्टोव पे रखा, उसको टेम्परेचर दिया and it will get hot, right? Means in both the cases, what we have kept one cold glass of water on the table, and on the same table we have kept or we are going to keep a hot tea. दोनों में क्या होगा? आफ्टर सम टाइम आपने जो हॉट और कोल्ड वाटर रखा या फिर हॉट टी जो रखी, आपने वैसे ही रखने दी, आप कुछ काम कर रहे हो और आपने उसको नहीं पिया, then what will happen, that cold water gets warmer after some time. मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इट विल गेट इंक्रीज्ड. आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर लो होता है बिकॉज वी आर कीपिंग इट इन द फ्रिज टू गेट इट कूल, एंड दैट इज वाई आफ्टर सम टाइम इट विल गेट हॉट और वार्मर. आप तो नहीं बोल सकते, आप उसका टेम्परेचर सराउंडिंग जितना होगा या उसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, देन हॉट टी क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी, या फिर उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा. ये आपको कैसे पता चलेगा? बाय टचिंग इट. ओके, मीन्स व्हाट, समथिंग इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सराउंडिंग एंड आइस कोल्ड वाटर और हॉट टी. मतलब आइस वाटर वार्म हुआ, हॉट टी कूल हुई. क्यों हुई? इट इज बिकॉज ऑफ देयर इज अ एक्सचेंज बिटवीन surrounding and ice cold water, or surrounding or hot
तो जो भी एक्सचेंज होगा उसे आप क्या बोलोगे? That something is called as heat. That heat is what? Heat is a energy, or heat is an energy which transfers from one medium to another. Okay, means मीडियम कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? आइस कोल्ड वाटर सराउंडिंग से हीट लेगा, हॉट टी अपनी हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर करेगी, मतलब हॉट टी सराउंडिंग में हीट प्रोवाइड करेगी एंड आइस कोल्ड वाटर विल टेक और एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. हीट एब्सॉर्ब हुई, इट विल गेट वार्मर. हीट रिलीज हुई, इट विल गेट कोल्डर. Okay, means heat is what? Heat is the energy. Heat is the energy which is used or which is one form of transfer of energy. मतलब heat क्या है? Energy है which is transferring from one medium to another and always from hot medium to cold medium. Okay, then what is mean by temperature? ओके कोई भी चीज जो रखी है दैट इज हॉट और कोल्ड, आपको कैसे पता चलेगा? बाय टचिंग इट. और बाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म है आप उसके पास भी जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो हॉट है. इट इज़ बिकॉज उसमें से जो हीट ट्रांसफर होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा. कोई भी चीज़ अगर घर में आपने पैन गैस पे रखा है और आपको चेक करना है वो गर्म है या नहीं है, हम क्या करते हैं? सिर्फ अपना हाथ उस पैन के आसपास लेके जाते हैं, आपको पता चल जाता है इट इज़ हॉट. और क्योंकि अगर हॉट नहीं होगा आप थोड़ा सा भी नीचे हाथ लेके जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पैन क्या करेगा? जो हीट एब्सॉर्ब करेगा वो एटमॉस्फेयर में भी रिलीज करेगा. तो रिलीज करेगा जो हॉट वेपर होंगे नियर टू दैट पैन, वो क्या मिलेंगे आपको? हॉट. और आपको समझ में आ जाएगा. या फिर आप पानी छिड़कोगे तो वो इट विल गेट इवेपोरेट, तो आपको समझ में आ जाएगा. मीन्स व्हाट? टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. डिग्री और यू कैन से सेंसेशन. सेंसेशन मतलब टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको टचिंग से समझ में आएगी. मेरा टेम्परेचर और मुझे आज फीवर है, ये मुझे आपको कैसे पता चलेगा? बाय टचिंग माई हेड. ओके, एंड हीट इज व्हाट? यू कैन नॉट सी हीट. हीट हमेशा क्या होगी? ट्रांसफर होगी. जैसे सोलर रेडिएशन आपके पास आते हैं, ठीक है, सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, येट आप अगर समर्स में जाओगे, जब शाइनी डे होगा आप बाहर जाओगे तो आप सन की हीट, या फिर दोपहर में बाहर जाओगे सन की हीट आप फील कर सकते हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हीट. हीट इज व्हाट? one form of energy which is transferring from one medium to another. And temperature is what? Sensation which we are getting from physical touch. Okay, then this is one part, and I think you have get a clear idea about what is mean by heat or what is the difference between heat and temperature. Okay, we are using temperature is what? फिजिकल क्वांटिटी विच वी आर गेटिंग. फिजिकल का मतलब क्या होता है? वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन द टच. कोई भी चीज आप टच करोगे वो हीट है. किसी रे को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं. देन जो भी चीज आपको टचिंग से पता चलेगी दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट विल बी हाउ हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉट मीडियम टू कोल्ड मीडियम, और वन मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट कैसे पास होगी. डिपेंड ऑन दैट देयर आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. Means heat can pass. I am not saying about temperature, I am saying about heat. Heat can pass from one medium to another or by three ways. That is by conduction, by convection and by radiation. Diagram which is given below will give the clear idea about the what I am going to say. That is conduction is happening in the solids. Okay, you are knowing that
that material is having three types, solid, liquid and gases, और you can say liquid और gases को हम fluid भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन कहाँ पे होता है, सॉलिड्स में होता है। तो कंडक्शन का डेफिनेशन क्या है, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ऑफ द सॉलिड बॉडी विदाउट एनी नेट बॉडीली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब अब सेम एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या किया है, एक वेसल है जो स्टोव पे रखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली हीट आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर किसको दे रहे हो, वेसल को दे रहे हो, लेकिन उसके साथ जो वेसल का हैंडल है वो भी गर्म हो रहा है। आपने डायरेक्टली उसको हीट प्रोवाइड की थी नहीं, लेकिन हैंडल का टेम्परेचर बढ़ा। तो ये जो मोशन है हीट का और ट्रांसफर है हीट का, उसे आप क्या बोलोगे, कंडक्शन। बिकॉज सॉलिड इज हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ मोलिक्यूल विच इट कैनॉट चेंज, क्योंकि सॉलिड इसीलिए है दैट इज इट्स शेप कैनॉट चेंज, ठीक है। शेप चेंज नहीं होगा, इट इज बिकॉज इसके मोलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है या मोलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ओके। बट अगर आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट इन द सेंस जस्ट लाइक अ स्विंग मशीन, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन। तो स्प्रिंग की जैसे, अगर स्प्रिंग आपने पकड़ी है, उसको आपने क्या किया, कंप्रेस किया, तो क्या होगा, अपनी जगह पे वो क्या हो जाएगी, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने हॉरिजॉन्टल पकड़ी है देन टू एंड फ्रो मोशन होगा स्प्रिंग का। अगर स्प्रिंग आपने क्या किया, वर्टिकल पकड़ा है, देन क्या होगा, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द स्प्रिंग। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। जितना आगे जाएगा उतना पीछे जाएगा, और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। दिस इज द मोलिकुलर वाइब्रेशन। बहुत सारे मोलिकुलर वाइब्रेशंस होंगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड को आपने हीट प्रोवाइड की तो वो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन, जैसा पेंडुलम है, पेंडुलम मूव होता है, उसकी मीन पोजीशन क्या है, एट द सेंटर, ठीक है। लेकिन आपने उसको मोशन दिया तो वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। जस्ट लाइक दैट पार्टिकल्स की ये जो मीन पोजीशन है उसके अराउंड पार्टिकल क्या करेगा, अबाउट देयर मीन पोजीशन इट विल गेट वाइब्रेट, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन ये मॉलिक्यूल ने अपनी जगह छोड़ी, यहाँ पे पहुंचा, तो क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल विल फोर्स, जो उसका आगे का नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसको वो फोर्स करेगा टू मूव फर्दर। तो देन इट विल जस्ट लाइक दिस, इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, बिकॉज ऑफ दैट इट इज गेटिंग वाइब्रेटेड, दिस एनर्जी is getting transferred when it is going to vibrate, and just like this energy is transferred from one part to another in solids, okay, that is due to vibration. Particles अपनी main position के about vibrate होंगे, does not move, and that is why we are calling it as a conduction. That is, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, टेम्परेचर ऑफ हैंडल इंक्रीजेस व्हेन वेसल केप्ट ऑन द फ्लेम। इसका टेम्परेचर हैंडल का बढ़ा ड्यू टू फ्लेम, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंडक्शन, ओके। देन कन्वेक्शन, हीट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट of the heated molecules within the fluid, okay. Then this is, अगर आपने कभी वाटर बॉईल होते हुए देखा है तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आपने वाटर वेसल हीट होने के लिए रखा तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला वाटर है वो क्या होगा, नीचे वाली वाटर की लेयर वो हीट होगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, एंड इट विल कम टू द अपर सरफेस ऑफ द वाटर, ओके। आफ्टर दैट जो अपर लेयर है वो
नीचे जाएगा। और हमेशा क्या होगा, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल हीट होंगे वो अपर सरफेस पे आएंगे, उसके नीचे वाला जो लेयर होगा वो हीट होगा, ऊपर आएगा, जैसे बबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द convection. Convection is what? Heat flows from one point to another by actual bodily movement of heated molecules within the fluid. Water heated in vessel. That is what example which I have given. Then next is radiation. That is the transfer of heat energy from one place to another via emission of EM waves. Without EM waves क्या होता है? Electromagnetic waves. Without intervening medium. और इसका एग्जाम्पल है सोलर रेडिएशन, ओके, दैट इज सन, जैसे मैंने पहले बोला आपको, सन इज फार अवे फ्रॉम अस एंड अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अबाउ 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। उसके बाद कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब देयर इज अ नो मीडियम, येट सोलर रेडिएशन, सन पे जो भी हीट जनरेट होती है या फिर जनरेट होगी, दैट विल कम टू द अर्थ सरफेस विदाउट एनी मीडियम, एंड द waves which are passing in the medium without medium, that waves are EM waves or electromagnetic waves, okay. That means there are three types of transmission of heat: conduction, convection, radiation. Conduction happens in the solid, convection happens in the fluid, that is air, as well as in the liquid, and radiation doesn't require any medium to transfer. Just like this, गैस फ्लेम के साइड में अगर आप खड़े हो या चूल्हे के साइड में आप खड़े हो, आपको क्या मिलेगी? आपको भी हीट मिलेगी या आपको भी वार्म फील होगा. इट इज बिकॉज दैट द रेडिएशन, और चूल्हे से जो भी हीट आपके ट्रांसफर होगी आपकी तरफ, वो क्या होगी? दैट इज कॉल्ड एज अ रेडिएशन. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट स्लाइड करा बरं. Okay, then this you have studied in the 11th, that thermal expansion means what? After provision or after providing a heat or temperature to our body gets heated, it will expand somewhat, and that expansion is linear expansion, aerial expansion और वॉल्यूम एक्सपांशन. लीनियर मतलब अगर कोई रॉड है उसको आपने हीट प्रोवाइड की तो उसका जो एक्सपांशन होगा अलोंग द लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन. एरियल एक्सपांशन मतलब किसी भी बॉडी का एरिया एक्सपांड होगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, उसे आप क्या बोलोगे? एरियल एक्सपांशन. एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, दिस इज फॉर again volume of the solid or gas or liquid will change due to application of heat, that is called as volume expansion. That is what I have noted here. When body is heated, normally it expands, and when cooled, normally contract. Matlab when we are providing heat to any body, it will get expand, and जब आप कूल करोगे जितना एक्सपांशन हुआ है दैट विल गेट कॉन्ट्रैक्ट. एटम्स इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो भी मैंने आपको कंडक्शन में अभी बताया, दैट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द हीट, सॉलिड इन द molecules in the atom will get vibrate about their mean position. When heated, they vibrate faster and force each other to move little further. This result into the expansion. Okay, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया, दैट इज जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा तब वो अपनी पोजीशन छोड़ के आगे जाएगा.
एंड ड्यू टू दैट अगर ये आगे जा रहा है, इसको जगह नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को पुश करेगा कि तुम भी आगे जाओ, जैसे हम करते हैं हमेशा। अगर भीड़ में है या फिर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे वाला है, अगर वो आगे नहीं जा रहा, हम उसको पुश करेंगे कि जल्दी जल्दी दर्शन हो, ठीक है ना। मतलब जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो भी मॉलिक्यूल हीट एब्सॉर्ब करेगा, वो क्या करेगा, इट विल पुश द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स फर्दर, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट there will be the expansion. In same way, expansion happens in the liquid and gases. Okay, so molecules of liquid and gas are moving with a certain speed. After heating, kinetic energy increases and they move little further and expand. Just like that, solid is having certain shape, and it is why molecules of the solid are having fixed positions. But in liquid and gases, their molecules of liquid and gases are not too much bound together, and due to that they are having some kinetic energy, they are always moving. And due to that, if you are providing the heat, what will happen, kinetic energy of liquid and gases, जो मॉलिक्यूल है उसमें, उसको और ज़्यादा मिलेगी। आपने हीट प्रोवाइड की, वो और ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, अगेन दे विल कोलाइड विद द अनदर मॉलिक्यूल्स, और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक्सपांड, या फिर एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और वो एक्सपांड होंगे। ओके, दैट इज द एक्सपांशन विच इज हैपन्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, एंड एवरीथिंग, सॉलिड, liquid and gases, everything will expand. Okay, then next part will be knowing this, that is what is meant by good conductor and bad conductors of heat. We are talking about heat, then the material that conducts or transfer heat easily, they are called as a good conductors. तो हम हमेशा घर में खाना बनाने के लिए मेटल के यूटेंसिल्स यूज करते हैं। इट इज बिकॉज वो हीट होंगे और अंदर जो खाना पक रहा है उसको भी हीट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम इंसुलेटर यूज करेंगे तो हम कभी भी खाना नहीं बना सकते, ठीक है। दैट इज वाई वी रिक्वायर गुड कंडक्टर्स टू मेक अ फूड, वी रिक्वायर गुड कंडक्टर्स टू मेक फूड, जस्ट लाइक दैट, दैट इज व्हाट examples are given. Silver, copper, aluminum, or you can say all the metals are good conductors of heat. Then what is meant by bad conductors? Then the material that conducts or transfers heat easily, not easily. Okay, then that is called as bad conductors of heat. Here, not easily, they are called as a bad conductors of heat, just like wood, clothes and air, or you can say any insulating material which we are using, they are bad conductors of heat. Okay, then next video karta. Okay, then in your book there are some questions which is given in the can you recall block. That questions I am taking, which is the revision again of your topic, which is you have studied in the 11th. Okay, that is what are the questions, that when a piece of ice is placed in water at room temperature, the ice melts and water cools down. Why does their temperature change? As I have explained before, that difference between temperature and heat, I have told you that what ice is having less temperature than water at room temperature. Okay, means ice and water, they are not having same temperature, and due to that water at room temperature transfers its heat energy to the ice. Temperature of ice will get increase and temperature of water will get decrease.
and this transfer will continues up to the temperature of both will be same, or they both are have थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब होता है द मटेरियल, जैसे आइस और वाटर, इन दोनों का हीट ट्रांसफर तब तक पॉसिबल है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता. अगर टेम्परेचर सेम है देयर विल नॉट बी एनी हीट ट्रांसफर. तो आप यही पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स यही है. लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, दैट एनीथिंग विच इज कूल एंड एनीथिंग विच इज हॉट, हॉट हमेशा क्या करेगा, अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मीडियम में ट्रांसफर करने का ट्राई करेगा. जैसे पेंडुलम करता है, पेंडुलम क्या करेगा, या स्विंग है, हमने उसको पुश दिया, वो मूव हो रहा है. स्विंग या पेंडुलम हमेशा मूव होगा वो नहीं. आफ्टर सम टाइम it will get its original position or mean position. It is because that position or mean position is the equilibrium of that pendulum. Okay, just like that room temperature, just like right now room temperature is 27 degree, you can consider. Then 27 degree is the room temperature, then water का temperature क्या होगा, 27 degree. आइस है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री. आइस के पास कम एनर्जी है, वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है. ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, इन दोनों में इक्विलिब्रियम है नहीं है, दैट इज दे आर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर डिफरेंट है, देन देयर विल बी द हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर होगी मतलब कौन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. तो वाटर से आइस में हीट ट्रांसफर होगी, वाटर अपनी हीट लॉस करेगा या लूज करेगा, और आइस वो हीट क्या करेगा, गेन करेगा. ओके, एंड देन ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, देन नेक्स्ट विल बी व्हेन वाटर बॉइल्स, व्हाई डज इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. आप पेपर में भी कर सकते हो. ठीक है, वाटर बॉईल होना स्टार्ट हुआ तो वाटर का कंटेंट कम होगा, बबल्स आएंगे, वाटर का कंटेंट कम होगा. लेकिन अगर आप थर्मामीटर डाल के देखोगे, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. आप उसको 1 घंटा गर्म करो, 15 मिनट, आफ्टर बॉइलिंग आप उसको कितना भी गर्म करोगे उसका टेम्परेचर सेम रहेगा. इट विल नॉट गोइंग टू चेंज. देन व्हाट विल हैपन, आप तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना उसको. आपने बॉइलिंग वाटर या फिर वेसल रखा, वाटर का स्टोव पे, गैस स्टोव पे रखा और आपने उसको हीट किया अप टू बॉइलिंग पॉइंट. आफ्टर दैट आपने हीट कंटिन्यूस रखा है, देयर विल नॉट बी चेंज. तो हो क्या रहा है, वाटर का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा. हो क्या रहा है, दैट यू आर नोइंग दिस, व्हेन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है. व्हेन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड विल चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस. ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी और जो भी एक्स्ट्रा हीट आप उस वेसल को प्रोवाइड कर रहे हो, वो क्या होगी, यूज होगी. कहाँ यूज होगी, टू कन्वर्ट वाटर इनटू द वेपर्स. इसीलिए वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. वाटर को जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करनी थी फॉर बॉइलिंग, इट इज यूज्ड. अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया मतलब क्या, इट विल चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. अगर स्टेट चेंज हो रही है मतलब स्टेट चेंज होने के लिए भी आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट वी आर गोइंग टू गिव इन द फॉर्म ऑफ हीट. फेज चेंज हो रहा है, एंड फॉर चेंजिंग द फेज ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस और टू लिक्विड टू वेपर, दो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है, वहां जा रही है. दैट इज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर व्हेन even though heat is supplied constantly. It is because all the heat energy provided is used up to changing
the state of water from liquid to gaseous state. ओके, ये आपने पढ़ा है latent heat. आप ये देखोगे what is mean by latent heat. ओके, जो भी हीट वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए लगती है उसे आप क्या बोलोगे? लैटेंट हीट. इसका डेफिनेशन आप आपके 11th स्टैंडर्ड के बुक में देखोगे. ठीक है. देन नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हेन एन इन्फ्लेटेड balloon is suddenly burst, why is the emerging air is slightly cooled? Inflated balloon का एग्जाम्पल है टायर. किसी भी गाड़ी का टायर हो वो इन्फ्लेटेड बलून है. मतलब वी हैव कंप्रेस्ड एयर इनटू द टायर. टायर में जो एयर होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है. ठीक है. जब टायर बर्स्ट होगा तो क्या होगा? एयर क्या होगी? एटमॉस्फेयर में पास होगी. तो जो प्रेशर है, जब एयर किस में है? टायर में है. टायर के ट्यूब में होगी जब एयर, तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा. जब वो रिलीज होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. जब प्रेशर कम होगा, along with that there will be the change in the temperature of the air which is coming out from that inflated balloon. Okay, तो यहाँ पे air in inflated balloon is under high pressure. Okay, when it suddenly bursts and rushes out, then there is a sudden decrease in the pressure and temperature of the air which is coming out from the tire. Okay, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा उस एयर का जो भी टायर के ट्यूब में है. जब वो बर्स्ट होगा तब क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा. जैसे ही टेम्परेचर कम होगा. You have studied this also, that is the relation between temperature, pressure and volume of gas. That you have studied, that is Charles law, Galois's law and ideal gas equation. You have studied this. Okay, you can study this again. और आपको अभी नेक्स्ट भी आएगा पार्ट, तब आप ये सब पढ़ोगे वापस. दैट इज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गेलॉसिस लॉ पढ़ा आपने. आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ा है. दैट इज जब गैस के 3 वेरिएबल्स है, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. आप इसी 3 टर्म्स में क्या करोगे? गैस को, गैस के फिजिकल क्वांटिटीज को या गैस को एक्सप्रेस करोगे. तो जब प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर, वॉल्यूम भी चेंज होता है. ठीक है. दैट यू हैव स्टडीड. ओके, दैट नेक्स्ट पार्ट इज then what is mean by thermodynamics and what we are going to study in thermodynamics. Okay, before that I have talked more about molecules, molecular vibrations, everything, but thermodynamics is all about macroscopic properties of body. मतलब तब हम, जैसे मैंने अभी बात की, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, देन मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी बात करेंगे हम, ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, नथिंग. हमने हीट दी गैस और फ्लूइड में, फ्लूइड के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ये आप पढ़ोगे. ठीक है. देन थर्मोडायनेमिक्स का नाम या ब्रांच वो कौन सी है? थर्मो मीन्स हीट. यू आर नोइंग दैट जहां भी वर्ड आएगा फिजिक्स में, इट इज रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर. Then dynamics, you are knowing this is motion. Then anything is in the motion, that is heat in the motion, that is thermodynamics. But thermodynamics is not that simple. Okay, then हमें thermodynamics क्या बताता है? That is equivalence of heat and work. Just I have given the example that जब आप अपने hands rub करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो? You are doing the work. या देयर इज अ फ्रिक्शनल वर्क, मतलब आप वर्क कर रहे हो, आपके दोनों हैंड्स में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है. ड्यू टू दैट फ्रिक्शन आपके हैंड्स क्या हो रहे हैं? वार्म हो रहे हैं. ठीक है. वर्क हो गया. वर्क का कन्वर्जन किस में हुआ? हीट में हुआ. ठीक है. या फिर हीट का कन्वर्जन आप यूज करते हो वर्क करने के लिए, जैसे इंजन हो गए, हीट इंजन्स. मतलब आपने क्या किया? वाटर को बॉईल किया,
वेपर में कन्वर्ट किया और इट विल इंजिन्स विल टर्न इनटू, दैट इज अनदर पार्ट जो आप पढ़ोगे, दैट इज आप हीट का कन्वर्जन वर्क में कर सकते हो या फिर वर्क का कन्वर्जन हीट में कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज, और आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा, दैट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या, ऑफ हीट एंड वर्क। जब हीट होगी you can produce heat by doing some work, or you can do some work, it will produce heat। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दैट इज आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, आप व्हीकल चला रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, योर इंजन इज डूइंग सम वर्क, एंड दैट अगर इंजन बंद है आपके व्हीकल का, आपका व्हीकल नहीं चल सकता, ठीक है, मीन्स योर इंजन और योर व्हीकल इज वर्किंग when your engine is working, vehicle का engine work होगा तब vehicle work होगा, ठीक है। after some time जब आप engine को हाथ लगाने जाओगे, can you touch the engine? no, means what, engine has done work to drive the vehicle, and उसके बाद work हुआ, उसके बाद heat produce हुई। this is one example that work can be converted, or work converted into the heat, or by doing some work heat is produced। और आप दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो या फिर जिम में जा रहे हो, तब क्या होगा, योर मसल्स आर डूइंग सम वर्क, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब आपने पूरा अपना एक्सरसाइज कर लिया तो आपको क्या लगेगा, आपकी बॉडी वार्म फील करेगी, मतलब समझ में आया, यू आर डूइंग सम फिजिकल वर्क, हीट, और आपकी बॉडी वार्म होगी। ये दोनों कौन से एग्जाम्पल है, वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट, ओके। और हीट इंजन, ये एग्जाम्पल किसका है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द वर्क। समझ में आया। देन thermodynamics is always is giving the equivalence between the work and heat, and just like that laws that governs the behavior of thermal energy, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होगी। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपने आज तक पढ़ा है, दैट इज आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा है, दैट इज वे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन कन्वर्ट इनटू द अनदर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, लाइट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो लाइट में, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ठीक है। ये तो लॉ हो गया, लेकिन ये लॉ का नेक्स्ट वर्जन या फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको थर्मोडायनामिक्स देगा, ठीक है। देन लॉज which governs the behavior of energy, thermal energy, आप हीट कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, उसके कौन से वेज है। जब हीट दोगे किसी भी मीडियम को तो उसमें से कितनी उस एनर्जी वेस्ट होगी, या फिर उसमें से कितनी एनर्जी उस बॉडी को हीट करने में यूज होगी, उस बॉडी का वर्किंग करने में यूज होगी, दैट इज द some laws. You can say this is first law of thermodynamics, but there are three laws of thermodynamics which we are going to study, okay. Then next is the how, that is one scientist is there, Benjamin Thompson, he have done one experiment and he observed that after doing some work heat is getting produced, and that experiment I have आपकी बुक में दिया है, that is why I am discussing this experiment. What is that? A large amount of heat is produced when brass cannons are bored. brass cannon का मतलब होता है that is तोप जो होती है पुराने जमाने में यूज करते थे in the battlefields, ठीक है। तो brass is the one material, you are knowing this,
तो कैनॉन का मतलब होता है तोफ, तो आपको उसमें क्या बनाना है, बीच में होल बनाना है टू गेट दैट बॉम्ब आउटसाइड ऑफ दैट कैनॉन। तो उसके लिए पहले तो कुछ नहीं होता था कि आप उसको कटिंग करके कर सकते हो, दैट इज आप पहले क्या करते थे, ड्रिल से बोर करते थे, ठीक है, या फिर आप ड्रिल मशीन से अगर आप वॉल में एक होल भी करोगे तो आपकी ड्रिल मशीन क्या होगी, आगे से हीट होती है, ठीक है, दैट इज देयर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन ड्रिल मशीन एंड वॉल ऑफ द वॉल। तो जहां पे आप पॉइंट करोगे वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन से क्या होगा, देयर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। वही एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, दैट heat produced was enough to boil water, ठीक है, large amount of heat is produced when brass cannons are bored, ठीक है, ब्रास को क्या बनाना है, बीच में होल बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रास एक मटेरियल है विच इज हार्ड, तो आप उसको बोर करोगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा और मैक्सिमम टाइम के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इज रिलेटेड टू वर्क बाय टर्निंग ड्रिल यूज्ड टू बोर द कैनॉन। मतलब जितना ज्यादा वर्क होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ओके, मतलब एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ से सिर्फ 5 मिनट चल के वापस आई तो मुझे कुछ अपनी बॉडी में वार्म, मेरी बॉडी वार्म हुई, ऐसा कुछ फील होगा मुझे नहीं, आई हैव टू वॉक और आई हैव टू डू सम फिजिकल वर्क फॉर हाफ एन आवर एंड 1 आवर, मतलब आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी वार्म हो गई है, समझ में आया। तो वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर विल बी, मतलब आपकी गाड़ी का इंजन तभी हीट होगा या उसका टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब आपका व्हीकल बहुत ज्यादा टाइम के लिए चल रहा है, समझ में आया। वैसी तरह से वर्क डन का मतलब क्या है, जितना ड्रिल आप जितनी टाइम के लिए ड्रिल यूज कर रहे हो उतनी ज्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन sharpness of the drill but the time of drilling, that is what I am saying। फ्रिक्शन तभी ज्यादा होता है जब कांटेक्ट ज्यादा होगा, कांटेक्ट कम है फ्रिक्शन कम होता है, मतलब किसी भी बॉडी का अगर कांटेक्ट ज्यादा है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ज्यादा है तभी, मतलब अगर मैं ये एक फिंगर दूसरे हैंड पे रब कर रही हूँ, ठीक है, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जितना एरिया रब हो रहा है, जब एरिया बढ़ेगा विल बी द, मुझे पूरा हैंड तभी वार्म लगेगा जब मैं दोनों हैंड को एक साथ वार्म कर रही हूँ, सिर्फ एक या दो उंगलियों से होगा क्या, नहीं। बाय द सेम वे जितना ज्यादा ड्रिल के शार्पनेस, जो ड्रिल आप यूज कर रहे हो उसके शार्पनेस से आपको उस हीट प्रोड्यूस से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, कितनी ज्यादा टाइम के लिए वो ड्रिल हो रहा है, कोई भी चीज ड्रिल हो रही है, मतलब ड्रिल मशीन आपने सिर्फ सिंगल टाइम के लिए यूज किया तो आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन आपको 10-12 क्या करने, होल बनाने घर में, तब आपको क्या लगेगा, ड्रिल मशीन हीट हो गई। या फिर आपके घर का टीवी बहुत ज्यादा टाइम के लिए ऑन है तो आपको क्या लगेगा, टीवी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा टाइम कोई भी मशीन चलेगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब वर्क डन का मतलब क्या होता है, समथिंग इज गोइंग रेगुलरली, मतलब टीवी ज्यादा देर के लिए चल रहा है, गैस ज्यादा देर के लिए चल रहा है, या फिर कुछ भी है, गैस का बर्नर तभी ज्यादा हीट होगा, 5 मिनट के लिए गैस ऑन किया बंद किया कुछ होगा नहीं, आपको उसके बहुत टाइम के लिए चालू रखना पड़ेगा, तब आपका कोई भी फूड है वो कुक हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज रिलेटेड टू इन दिस टाइम, इन दिस एग्जाम्पल वर्क डन इज रिलेटेड टू द टाइम, ओके, देन ग्रेटर द टाइम लार्जर द हीट। इन ओल्डर डेज जैसे हीट इज कंसिडर्ड एज सम टाइप ऑफ फ्लूइड, मतलब जब कभी भी, यह हम बात कर रहे हैं 1798 की, जब साइंस की शब्द सिर्फ शुरुआत हुई थी, तब अगर कोई भी चीज फाइंड करनी है तो देयर विल बी द सम प्रेडिक्शंस,
तो हमेशा हीट जो पास हो रही है उसको उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या बोला, हीट इज सम टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज पासिंग फ्रॉम, फ्लूइड मतलब इट इज मतलब विजिबल नहीं है, that is just like a air, it is not visible but it is passing from hot medium to cold medium. But this theory was wrong due to this experiment. Then Benjamin Thompson observed that heat is form of energy, not a fluid, and if heat is energy it can be converted into one form to another. ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बोला, वी कैन कन्वर्ट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. देन व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स? देन जो एक्सपेरिमेंट हुआ या फिर बेंजामिन थॉमसन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो क्या है और उससे क्या ऑब्जर्वेशन उसको मिला, दैट द वर्क डन बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द हीट. कोई भी वर्क डन हुआ तो उसका कन्वर्जन किस में होगा, हीट में होगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई भी चीज, फैन चल रहा है, वर्क हो रहा है, तो कुछ देर बाद वो फैन को क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. कोई भी सिस्टम हो अगर वो वर्क कर रहा है then it is converting into the heat. Next is, what is the definition of thermodynamics? That is branch of physics deals with concept of heat and temperature and interconversion of heat and other forms of energy. तो thermodynamics में आप क्या पढ़ोगे, that कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. ये तो आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज मीन बाय हीट, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर. ओके, देन आप आगे क्या पढ़ोगे, क्या पॉसिबिलिटीज है, दैट इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. मतलब हीट को आप कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वेदर इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसके कौन से वेज है, and due to that what will happen, how we will use this thermodynamics in our applications. जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ठीक है, कूलर है, ये एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें हम क्या करते हैं, रूम को कूल करते हैं. यहाँ से जो भी कोई भी रूम हो उसमें एसी लगा है तो क्या होगा, उसमें से हर चीज क्या हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेयर से. समझ में आया? या फिर फ्रिज है, उसमें आप क्या करोगे, कुछ भी चीज ठंडी करने के लिए रखते हो, दैट इज अगेन दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन. ओके, देन इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे आप स्पीड को एक्सप्लेन करोगे, कोई भी व्हीकल चल रहा है तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है. जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ वेरिएबल्स होंगे जिसमें आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे. देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, लॉ दैट गवर्न्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड application of thermodynamics, that is heat engines and their efficiency. Okay, this is all about the introduction of your thermodynamics, that and some part which I have taken from the your 11th standard book, that lesson is, then this is your introduction of thermodynamics. Then from next lecture we will start with the thermal equilibrium, internal energy and zeroth law of thermodynamics. Okay, thank you.